Good morning, class. Yesterday we have studied about one application of dimension analysis. Now we will learn the another application of dimension analysis, and that is to check the dimensional correctness of a physical quantity. देखिए करेक्टनेस में हमने एक वर्ड यूज किया है डायमेंशनल करेक्टनेस। ये जो मेथड है वो ये बता सकता है कि जो गिवन फॉर्मूला है वो डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं है। बहुत सारे लिमिटेशंस हैं जो आप इससे फुलफिल नहीं कर सकते, इसलिए ये किस टाइप की करेक्टनेस को चेक करेगा, डायमेंशनल करेक्टनेस को चेक करेगा कि फॉर्मूला डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं है, पॉसिबल है या नहीं है। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल दिस एप्लीकेशन इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस का मतलब है कि अगर आपको कोई भी फॉर्मूला गिवन है, ऑब्वियसली इट विल हैव ए लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड. Some physical quantities will be on left hand side and some physical quantities will be in right hand side. Okay, so according to this principle a physical quantity will be dimensionally correct if dimensions of all the terms occurring on both sides of equation are same. मतलब जो dimensions सभी physical quantities की left side में है overall dimension, वही overall dimensions right hand side में होनी चाहिए। जैसे मैथ्स में हम इक्वल टू साइन लिखते हैं तो इक्वल टू का मतलब क्या होता है कि लेफ्ट और राइट साइड इक्वल है। सिमिलरली डायमेंशंस में भी अगर हम इक्वल साइन ले रहे हैं, इट मीन्स द डायमेंशंस ऑफ ऑल फिजिकल क्वांटिटीज इन लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू डायमेंशंस ऑफ ऑल फिजिकल क्वांटिटीज इन राइट हैंड साइड, देन ओनली द गिवन फॉर्मूला विल बी करेक्ट। दूसरी बात, अगर किसी फॉर्मूला में एडिशन और सब्ट्रैक्शन है, इट मीन्स टू फिजिकल क्वांटिटीज हैविंग सेम डायमेंशंस कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड। मतलब अगर दो फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशन सेम है तभी आप उनको ऐड कर सकते हैं। इसका मतलब ये है दैट वेलोसिटी कैन बी एडेड विद वेलोसिटी ओनली, वेलोसिटी कैन बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द वेलोसिटी ओनली, फोर्स कैन बी एडेड विद फोर्स ओनली, फोर्स कैन बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम फोर्स ओनली। फोर्स में आप लेंथ को ऐड नहीं कर सकते, आप ये नहीं कह सकते कि 3 न्यूटन फोर्स है इसमें 5 मीटर लेंथ ऐड करें। So two physical quantities having different dimensions cannot be added or subtracted. उन्हीं फिजिकल क्वांटिटीज में एडिशन और सब्ट्रैक्शन पॉसिबल है जिन क्वांटिटीज में की डायमेंशन सेम है। ओके, तो अगर दो क्वांटिटीज के बीच में एडिशन या सब्ट्रैक्शन का साइन है, इसका मतलब प्लस और माइनस साइन के आइदर साइड में जो क्वांटिटीज हैं दे आर हैविंग सेम डायमेंशंस। ओके, सो वी विल स्टार्ट this application with the help of an example. For example, E is equal to mc square. This is the well-known formula and we have to check whether the formula is correct or not. In left hand side E is energy, in right hand side m is mass and c is speed of light in vacuum. Okay, now first of all write dimensions of left hand side. Energy its dimension is m1 l2 t minus 2. आपको ये डायमेंशनल फॉर्मूला याद करने पड़ेंगे। In right hand side it is mc square. M is mass, so it is m1. C is the velocity of light and velocity having dimensional formula L1 t minus 1. Any type of speed or velocity possesses dimensional formula L1 t minus 1. As its square is there, so we will put a square sign. Square को open कर दें, overall you will get m1 L2 t minus 2. Now you can see m1 L2 t minus 2 is the overall dimension of left hand side. m1 L2 t minus 2 is the overall dimension of right hand side. So as all the terms on both sides of the equation have same dimensions, so the given for equation is dimensionally correct. ये जो formula है वो dimensionally correct है. One more example is there. We write a formula for potential energy as mgh. Again we are going to check this formula. Potential energy, obviously it is energy and energy have the dimensions as m1 L2 t minus 2. So whether it is kinetic energy or work, all physical quantities have same dimensions and the dimensions are m1 L2 t minus 2. Okay, now come to right hand side. In right hand side physical quantities are mgh. Mass, gravitational acceleration, h is height. So first of all it is mass, then its dimensional formula is m1. G is gravitational acceleration. Obviously it is an acceleration and acceleration के लिए dimensional formula होता है L1 t minus 2. L1 t minus 2. H is height and height is a length
so it is L1. So combine all these things, so M1, L1 and L1, it is L2 and T minus 2. Now you check what are the dimensional formula for all physical quantities in left hand side, M1 L2 T minus 2. What is the overall dimensional formula for all physical quantities in right hand side? It is M1 L2 T minus 2. So obviously dimensions are equal on both sides, and the given formula is dimensionally correct. Okay, so ये दो एप्लीकेशन है, इसी मेथड से आप और भी जो गिवन फॉर्मूला होंगे उनकी करेक्टनेस को चेक कर सकते हैं. नेक्स्ट एप्लीकेशन इज द डिड्यूसिंग द रिलेशन अमंग द फिजिकल क्वांटिटीज. अगर आपको ये पता हो दैट यू आर हैविंग ए फिजिकल क्वांटिटी एंड इट डिपेंड्स ऑन वेरियस फैक्टर्स, देन यू कैन फाइंड रिलेशन बिटवीन देम. ओके, अगेन this application works on the principle of homogeneity of dimensions. We can derive an expression for a physical quantity if we know the various factors on which it depends. हमें ये पता होना चाहिए किस किस पर डिपेंड करता है. हम एक रिलेशन एस्टैब्लिश करेंगे और लेफ्ट साइड की डायमेंशंस को राइट साइड की डायमेंशंस के इक्वल पुट कर देंगे, देन यू विल गेट द रिक्वायर्ड रिलेशन. ओके, फॉर एग्जांपल, all the applications can be explained on the basis of certain examples only. Okay, so we are taking an example. The frequency nu of vibration of a stressed string depends on, first, its length, second, mass per unit length, it is not mass, it is mass per unit length m, and the tension T in string. इस रिलेशन में सिर्फ ये बताया जाएगा आपको that it depends, लेकिन किस टाइप से डिपेंडेंसी है, वेदर इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द क्वांटिटी, ये हमें नहीं पता. हमें ये पता है इन वेरिएबल्स पर डिपेंड करता है. ओके, सो मैं इसको इस टाइप से लिखता हूँ. सपोज फ्रीक्वेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L to the power A इज ए कांस्टेंट. फ्रीक्वेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू mass per unit length to the power B, and frequency is directly proportional to temperature to the power C. हमें A, B, C की वैल्यूज पता लगानी है कि ये इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है या इनवर्सली है या स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है, तो ये बाद में आएगा. ओके, कंबाइन ऑल दीज थ्री थिंग्स, सो यू आर गोइंग टू गेट ए रिलेशन nu इज इक्वल टू k. k इज ए कांस्टेंट, आपको पता है जब भी प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाते हैं वी पुट ए कांस्टेंट साइन, L to the power A, M to the power B and T to the power C. This is your equation number 1. Now, अब सभी physical quantities की dimensions लिखें. What are the dimensional formula for frequency? It is reciprocal of the time period, so it is T to the power minus 1. Dimensional formula for length, L1. Dimensional formula for small m, it is mass per unit length, so it is m upon L. ये चीज ध्यान रखेंगे, इट इज नॉट ओनली मास, इट इज मास पर यूनिट लेंथ, इट इज गिवन हियर. सो मास पर यूनिट लेंथ, इट मीन्स मास अपॉन लेंथ, so m1 L minus 1. Dimensional formula for tension, tension is a one kind of force. Okay, so force के लिए फॉर्मूला है m1 L1 T minus 2. ये सभी वैल्यूज आप लेफ्ट साइड में और राइट साइड में सब्स्टिट्यूट करें. व्हाट यू आर गोइंग टू गेट इन लेफ्ट हैंड साइड, इट इज nu के लिए हमने लिखा है T to the power minus 1 is equal to k is a constant, it is dimensionless constant. Okay, so L to the power A, L means length, length के लिए फॉर्मूला है L1 and its power A. M to the power B, M means mass per unit length, it is M1 L minus 1 and its power B. And last one is T to the power C, T means tension, M1 L1 T minus 2 and its power C. Okay, so collect all these things, m to the power b and m to the power c, so total power m to the power b plus c. Similarly, L to the power a minus b and minus 2c, sorry c, so L की power a minus b and c, so it is a minus b plus c. L की powers को collect कर लें and t की power देखें minus 2 into c minus 2c. अब आप कंपेयर करें, क्या यहाँ पर मास की पावर है? नो, मास की पावर 0 है. यहाँ मास की पावर b प्लस सी है, सो b प्लस सी इज इक्वल टू 0.
L की पावर देखें a minus b plus c. What are the powers of L here? Obviously there is no power, so it is 0. A minus b plus c is 0. T की power minus 2c and t की power minus 1. So obviously minus 2c is equal to minus 1. If minus 2c is equal to minus 1, it will give you value of c as half. This is equation number 2. अगर मैं c की वैल्यू को हाफ इस इक्वेशन में लिखता हूँ तो आपको मिलेगा b इज इक्वल टू माइनस हाफ. सो दिस इज इक्वेशन नंबर 3. ओके, अगर मैं c की वैल्यू को हाफ एंड b की वैल्यू को माइनस हाफ लिखता हूँ देन इट बिकम्स +1 और +1 को आप यहाँ ट्रांसफर करें, यू विल गेट a एज -1. सो दिस इज इक्वेशन नंबर 4. सो वैल्यू ऑफ a इज -1, b इज -2 एंड c इज हाफ. ये वैल्यूज को आप अगेन इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट कर दें तो आपका रिलेशन इस टाइप से होगा. nu इज इक्वल टू k l टू द पावर -1. a इज -1, b इज -हाफ एंड c इज हाफ. जब आपने ये वैल्यू को पुट किया तो -हाफ का मतलब होता है डिवाइड में, -1 का मतलब भी डिवाइड में, बट हाफ का मतलब होता है अंडर रूट. सो इट इज nu इज इक्वल टू k बाई एल अंडर रूट t अपॉन m. अंडर रूट t अपॉन m. Okay, let us take one more example. The centripetal force F acting on a particle of mass m moving with velocity v in a circle of radius r. Find the relation for force. तो सेंट्रीपिटल फोर्स F ये किस किस पर डिपेंड करता है? मास पर, वेलोसिटी पर और रेडियस पर. So suppose force is directly proportional to mass to the power a, velocity to the power b and radius to the power c. So m to the power a, v to the power b, radius to the power c. Proportionality sign हटेगा, you will find a constant k. Okay. Now what is the dimensional formula for force? It is m1 l1 t minus 2. Formula for mass, it is m1. Formula for velocity l1 t minus 1. And formula for radius is a length, so it is L1. अब बताएं, लेफ्ट हैंड साइड में फिजिकल क्वांटिटी है फोर्स, तो फोर्स के लिए फॉर्मूला m1 l1 t minus 2. m to the power a, m is mass, its power a. Velocity l1 t minus 1, its power b. Radius length, its power c. कलेक्ट करें, m की पावर 1 को a से मल्टीप्लाई किया तो a, लेंथ की पावर b एंड c, सो इट इज b प्लस c, एंड टाइम की पावर -1 इंटू b माइनस b. कंपेयर करें m टू द पावर a, m टू द पावर 1, सो a इज इक्वल टू 1. लेंथ को लेंथ से कंपेयर करें, लेंथ b प्लस c एंड 1, सो b प्लस c इज इक्वल टू 1. t की वैल्यू -b एंड -2, सो -b इज इक्वल टू -2. इससे आपको मिल गया b इज इक्वल टू 2. b की वैल्यू को 2 पुट करें देन c इज इक्वल टू -1. तो हमारे पास रिलेशन आ गया a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 2, c इज इक्वल टू -1. ये वैल्यूज पुट करें. सो m टू द पावर a मीन्स 1, v टू द पावर b मतलब 2 एंड r टू द पावर c मीन्स -1. तो जो -1 में उसको डिवाइड पर भेज दें. f इज इक्वल टू k mv स्क्वायर अपॉन r. एक्चुअली k इज ए कांस्टेंट एंड इट्स वैल्यू इज फाउंड टू बी 1. So f is equal to mv square upon r. Okay, so this is the required formula for centripetal force experienced by an object of mass m moving with velocity v in a circle of radius r. The basic drawback of this method is that you cannot predict the value of constant using this expression. k की वैल्यू को मैं 1 पुट करूं, 2 पुट करूं, 3 पुट करूं, ये वैल्यूज मैं फाइंड नहीं कर सकता. अगर मैं यहाँ k की वैल्यू को 2 पुट भी कर देता हूँ तो भी ये फॉर्मूला डायमेंशनली करेक्ट ही होगा. ये सिर्फ फिजिकल क्वांटिटीज जो इन्वॉल्व हैं उनकी वैल्यूज को चेक कर सकता है, कांस्टेंट की वैल्यू को चेक नहीं कर सकता. ये इस सिस्टम का या इस मेथड का एक बेसिक ड्रॉबैक है. ओके, दैट यू कैनॉट कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट यूजिंग दिस डायमेंशन एनालिसिस मेथड. नाउ अगेन वी आर गोइंग टू लर्न the last application of this method, that is finding the dimensions of an unknown quantity.
अगर किसी एक्सप्रेशन में कोई अननोन क्वांटिटी है तो आप उसकी डायमेंशंस को भी इसी मेथड के थ्रू कैलकुलेट कर सकते हैं। एंड अगेन द प्रिंसिपल इज द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस। अभी हमने स्टडी किया था दैट फिजिकल क्वांटिटीज हैविंग सेम डायमेंशंस कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड। मतलब अगर इस एक्सप्रेशन में कहीं प्लस और माइनस का साइन है तो इसका मतलब ये है कि दोनों साइड की जो डायमेंशंस है वो सेम है, क्योंकि दो फिजिकल क्वांटिटीज जिनकी डायमेंशन सेम है उनको ही आप ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। लेट अस लर्न दिस एप्लीकेशन विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल। Find the dimensions of a upon b in the equation p is equal to a minus t square upon bx. Here p is pressure, t is time and x is distance. Okay? सबसे पहले देखें यहाँ पर माइनस प्लस कहाँ है। सी द न्यूमरेटर। न्यूमरेटर में हमारे पास एक्सप्रेशन है a minus t square. Okay, so first see the numerator a minus t square. Here it is a subtraction sign, minus sign है. If there is a subtraction sign, it means a और t square इन दोनों की डायमेंशन सेम है। ओके, सो डायमेंशंस ऑफ a इज इक्वल टू डायमेंशंस ऑफ t स्क्वायर। अब a की डायमेंशन तो हमें पता नहीं, लेकिन t तो टाइम है। अगर t टाइम है तो इसका डायमेंशंस क्या हो जाएगा, t स्क्वायर। So dimensions of A is equal to t square. This is your first result. Now come to second. अब यहाँ इस एक्सप्रेशन में कहीं भी एडिशन और सब्ट्रैक्शन नहीं है। सेकंड थिंग, सब्ट्रैक्ट करने पर भी डायमेंशन वही रहेगी, एडिशन होगा तो भी डायमेंशन वही रहेगी। टाइम एडेड विद टाइम गिव्स टाइम एंड टाइम सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम टाइम अगेन गिव्स यू टाइम। ओके, लेंथ एडेड विद लेंथ गिव यू लेंथ and length subtracted from length it again give you a length. Okay, so P is pressure and its dimension will be m1 l minus 1 t minus 2. X is distance, its dimension is l1. In numerator a minus t square, overall it has the dimension of t2. क्योंकि ये भी t की पावर 2 है, ये भी t की पावर 2 है, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो जीरो नहीं होगा। ध्यान रखें ये डायमेंशंस है। 1 मीटर में 1 मीटर को ऐड करोगे तो 2 मीटर होगा, मीन्स लेंथ मीटर ही रहेगी, मैग्नीट्यूड चेंज हो जाता है। तो सब्ट्रैक्ट करने पर डायमेंशंस में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, इट विल रिमेन t2. इट मस्ट बी नोटेड a माइनस टी स्क्वायर इट इज इक्वल टू t2। अब ये फॉर्मूला आप लिख दें। अब b की डायमेंशन हमें नहीं पता, p की पता है, न्यूमरेटर की पता है, x की पता है, b की नहीं पता, तो b को मैंने एज इट इज छोड़ दिया। प्रेशर इज इक्वल टू न्यूमरेटर T2, B नहीं पता, X की वैल्यू L1, तो B को ट्रांसफर कर दें न्यूमरेटर में और इस क्वांटिटी को यहाँ ले आए। सो B इज इक्वल टू T2 अपॉन L1 तो ये है, और M1 L माइनस 1 T माइनस 2 ये डिनोमिनेटर में आ गया। सिंप्लीफाई कर लें, सो यू विल फाइंड द डायमेंशन ऑफ B इज इक्वल टू M माइनस 1 L0 T4। सिंप्लीफाई कर लें। ओके, देन व्हाट इज A अपॉन B? A is t square, B is m minus 1 t4. Simplify it, so you get m1 t minus 2. Okay. Let us learn one more application. The equation of state for a real gas is given by P plus A upon V square, V minus V is equal to RT. Find the dimensions of A and B. तो थोड़ा सा पहले फॉर्मूला देख लें। A इस एक्सप्रेशन में है और B इस एक्सप्रेशन में है। ऑब्वियसली दोनों के साथ प्लस और माइनस साइन है। फर्स्ट ऑफ ऑल, P इज प्रेशर M1 L minus 1 T minus 2. V is volume L3. T is temperature T to the power 1. So first of all, see the quantity enclosed in this bracket V minus B. There is a negative sign, means subtraction between volume and B. अगर सब्ट्रैक्शन है इट मीन्स जो डायमेंशंस वॉल्यूम की हैं वही डायमेंशंस बी की हैं। सो डायमेंशंस ऑफ वॉल्यूम इज इक्वल टू डायमेंशंस ऑफ बी, और वॉल्यूम के डायमेंशंस क्या है, L3, इट मीन्स डायमेंशंस ऑफ बी इज इक्वल टू L3। सो दिस इज योर फर्स्ट रिजल्ट। सेकेंड थिंग, देयर इज ए एडिशन साइन बिटवीन प्रेशर एंड A अपॉन V स्क्वायर। A अपॉन V स्क्वायर इज सिंगल क्वांटिटी, ये ध्यान रखें। सो dimensions of pressure and dimensions of A upon V square they are same. प्लस किस किस के बीच में वो देखें,
प्लस के लेफ्ट साइड में p है और प्लस के राइट साइड में a अपॉन वी स्क्वायर है। ये चीज ध्यान रखें, यहाँ ये ओवरऑल वी स्क्वायर नहीं है, इट इज a अपॉन वी स्क्वायर। सो डायमेंशंस ऑफ a अपॉन वी स्क्वायर इज इक्वल टू डायमेंशंस ऑफ प्रेशर। तो हमें तो a फाइंड करना है, v स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया। So dimensions of A is equal to dimensions of pressure into dimensions of V square. Pressure is m1 L minus 1 T minus 2. V square, V is L3, so V square is L to the power 6. This is the dimensions of A. So it is m1 L5 T minus 2. Okay. So in this way you can find the dimensional formula for any unknown physical quantity. I will give you some more questions for your practice. That's all for today. Have a good day.